السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز اور میں ہوں رانی سیف اللہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کراچی میں صبح ہونے والی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح کے وقت درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے گرد آلود ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز وجی الدین سے۔ وجی، موسم کیسا ہے اور ابھی بھی بارش ہو رہی ہے کیا؟ بارش کے بعد موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نارتھ کراچی، نارتھ نازیباد، اس کے علاوہ سرجانی ٹاؤن، منگو پیر، گلستان جوہر، گلشن اقبال، صدر، اس کے اطراف کے علاقے، آئیے چندی گڑھ روڈ میں جو ہے بارش جو ہے ہلکی پھلکی ہو رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج جو ہے یہ پورے دن بارش کا سلسلہ جو ہے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ 2 بجے کے بعد جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے تیز بارش کے امکانات بھی جو ہے دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کی جائے تو اس ٹائم ہوا میں نمی کا تناسب جو 82% جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بارش کے امکانات جو ہے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس ٹائم جو ہے 27 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو مونسون کا اسپیل ہے کہ آئندہ اتوار کے روز تک جو جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں آج بھی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے دوپہر اور شام کے اوقات میں جو ہے بارش کا سلسلہ جو ہے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شہری بھی جو ہے کافی زیادہ ہمیں خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں سے بھی ہماری بات ہو، شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح سے ہی جو موسم جب بارش کا آغاز ہوا تو موسم کراچی کا کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو کراچی کے شہری بھی جو ہے کافی زیادہ ہمیں خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ کراچی کے شہری خوش ہیں، جبکہ دوسری جانب پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ پنجاب میں بارشوں سے برا حال ہے۔ ضلع قصور سمیت کئی اضلاع میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سندھ کے بالائی شہروں میں آج ہوئی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلے نے بولان پل توڑ دیا۔ لسبیلا میں سیلابی ریلے سے کراچی کوئٹہ شاہراہ کا ایک حصہ بہہ گیا۔ مزید کیا تباہیاں ہوئی ہیں، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں مانسون اسپیل تباہ کاریوں کا سلسلہ بن گیا۔ کنکوٹ اور گردنواہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ تنگمانی میں بارش کا سلسلہ کل رات سے وقفے سے جاری ہے۔ اوباڑو اور گردنواہ میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پنجاب میں بارشیں تباہ کن بن گئیں۔ قصور میں موسلا دھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارش سے نیا بازار سمیت کئی علاقے ڈوب گئے۔ نیا بازار سمیت گھروں اور دکانوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، جس سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان تباہ ہو گیا۔ کوٹ عباس میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بہاول نگر، ننکانہ صاحب، ماناوالا، صفدر آباد، شاہکوٹ، چشتیاں، حجرہ شمقی میں بھی بادل کھل کر برسے۔ بلوچستان میں بارش سے ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ شیرانی، ہرنائی، سبی، بولان، ڈیرہ بگٹی، کوہلو، بارکھان، مسخیل اور لسبیلا میں موسلادھار بارشوں سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سیلابی ریلے سے بولان میں پل ٹوٹ گیا۔ بولان کا مسجد زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ اور اب کو سیاسی منظرنامہ سب کے سامنے کہتا ہوں، لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل 6۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا حکومت کو کھلے عام چیلنج۔ انتخابی مہم کے آخری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، جب میرے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا تو کم از کم مجھے بولنے کا موقع ملے گا۔ جو باتیں میں نے ابھی تک نہیں کی، کم از کم آرٹیکل 6 کے بعد بتا سکوں گا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کہا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جج نے کہا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 یعنی غداری کے اوپر لگنا چاہیے۔ میرے اوپر بھی، عارف الوی صدر پاکستان کے اوپر بھی، قاسم سوری اسپیکر کے اوپر بھی اور فواد چودھری کے اوپر بھی۔ انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 ایک جج کہتا ہے۔ آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ لگاؤ میرے اوپر آرٹیکل 6۔ میں کہتا ہوں اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو کم از کم مجھے موقع ملے گا۔ جو باتیں ابھی تک میں نے نہیں کی، کم از کم میں عدالت کے سامنے وہ بتاؤں گا دنیا کو کہ ہمیں ایک گورنمنٹ کو ہٹا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ ضمنی انتخابات کے دوران امن و امان کے لیے رینجرز کے علاوہ فرنٹیئر کانسٹیبلری تعینات کرنے، پنجاب اور سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں آتش اسلحہ اور اسلحے کی نمائش اور شرپسندی عناصر کے ضمنی انتخابات کے حلقے میں داخلے پر بھی مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
पंजाब और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान के इंतजामात के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में अमन व अमान के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान रेंजर्स के अलावा फ्रंटियर कंस्टेबलरी तैनात करने का फैसला किया गया। पंजाब और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के तमाम हलकों में आतिशी असला की नुमाइश, शरपसंद अनासिर के हलकों में दाखिले पर पाबंदी लगाने का भी फैसला हुआ। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फौरी गिरफ्तारी, असला जब्तगी और लाइसेंस मनसूख करने जैसे इकदाम अमल में लाए जाएंगे। इजलास में गुजरात से लाहौर लाए गए 300 असला बरदार अफराद के हवाले से रिपोर्ट पर भी गौर किया गया। अमन अमान की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में 16 और 17 जुलाई के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इजलास में लिए गए फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत जारी कर दी। 17 जुलाई को जीतने के बाद मुफ्त बिजली देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का मुल्तान में जलसा आम से खिताब। कहती हैं मुल्तान से शेर की आवाज़ आएगी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इदारे उसकी उंगली पकड़ कर चलाएं तो अच्छा है, जिस दिन इदारे आइन का साथ दें तो गलत हो जाते हैं। आज इलेक्शन कमीशन कानून के तहत चल रहा है तो बुरा हो गया। अदालतें सोमोटो लेती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। उसने इस्लामी कार्ड भी खेला, उसने हम सब पर तौहीन मजहब के इल्जामात भी लगाए। मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि 17 जुलाई को मुल्तान में शेर धाड़ेगा। इदारे इसका साथ दें, इसकी उंगली पकड़ के इसको चलाएं, इसको सपोर्ट करें, इसकी आंखें, नाक और कान बने तो इदारे अच्छे। जिस दिन इदारे इसका साथ छोड़ने का फैसला कर ले और आइन का और कानून का साथ देने का फैसला कर दे, उस दिन इदारे जो है वो गलत हो जाते हैं। आज जब ईसीपी कानून के तहत चल रहा है तो आज ईसीपी बुरा हो गया। अदालतें अगर इसकी आइन शिकनी पे नोटिस लें तो ये कहता है मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, इसने इस्लामी कार्ड खेला, तौहीन मजहब के इसने इल्जाम लगाए, अल्लाह ताला मेरी तौबा। मुल्तान से पंजाब असम्बली के हल्का 217 पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। ज़िमनी इलेक्शन में 4 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। नून लीगी सलमान नईम का मुकाबला पीटीआई के जैन कुरैशी से होगा। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद सकलैन की रिपोर्ट में। मुल्तान का हल्का पीपी 217 पंजाब के उन 20 हलकों में शामिल है जहां 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। इस हल्के से 4 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जैन कुरैशी, जमात इस्लामी के उम्मीदवार साजिद इस्माइल, जबकि जाहिद हमीद गुज्जर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं। ताहम जैन कुरैशी और सलमान नईम के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से आजाद उम्मीदवार सलमान नईम ने पीटीआई के उम्मीदवार शामुद कुरैशी को शिकस्त दी थी। शहरी हल्के पर मुश्तमिल इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 2,16,996 है, जिनमें 1,15,158 मर्द जबकि 1,01,838 खवातीन वोटर शामिल हैं। इस हल्के में 124 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, इनमें 61 मर्दाना, 55 जनाना जबकि 8 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका बनाए गए हैं। मोहम्मद सकलैन, जीटीवी न्यूज, मुल्तान। शेखुपुरा में पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 140 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का। नून लीग ने मियां खालिद महमूद को मैदान में उतारा है, जबकि पीटीआई से खुर्रम शहजाद विर्क मुकाबला करेंगे। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा पीपी 140 में मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है और ये सियासी खेल अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। दोनों जमातें जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन पीपी 140 में शेखुपुरा के वोटर्स की तादाद 2,41,558 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,30,315 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,11,283 है, जिसके लिए 165 पोलिंग स्टेशन और 601 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिसमें 17 जुलाई को पोलिंग होगी। डीपीओ शेखुपुरा की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। 3,000 अफसरान और एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज, शेखुपुरा। साहिवाल में भी 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजेगा। मुनहरिफ रुकन की खाली सीट पर दोनों बड़ी सियासी जमातों ने तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। विल्सन रजा की रिपोर्ट देखिए।
साहिवाल का हल्का PP 202 चीचावतनी में ज़िमनी इंतखाब का मौका। उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन जीतने की भरपूर कोशिशें। तहसील चीचावतनी हल्का PP 202 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। इलेक्शन जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ये सीट 2018 के इलेक्शन में PTI के मुहन्निफ रुकने में पंजाब असेंबली मलिक नौमान लंगड़ियाल की D सीट होने पर खाली हुई थी। नौमान लंगड़ियाल अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। बुजुर्ग सियासतदान मेजर रिटायर्ड चौधरी गुलाम सरवर तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का मुकाबला करेंगे। हल्के में TLP के उमैर सलीम रिजवी समेत 8 उम्मीदवार भी मौजूद हैं। हल्का PP 202 की कुल आबादी 4,02,000 नफूस पर मुश्तमिल है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,33,079 है, जिनमें मर्द वोटर की तादाद 1,27,284 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,57,095 है। हल्के में पोलिंग स्टेशनों की तादाद 176 और 471 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा सरबराह तहरीक इंसाफ के बयानात झूठ पर मबनी और बेहुदा इल्जामात हैं। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर होंगे जिनमें कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। 25 मई को इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी फहरिस्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। जिस फहरिस्त की बात हो रही है वो गैर हतमी वोटर लिस्ट है जो अगले आम इंतखाबात के लिए अपडेट हो रही है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पोलिंग स्टेशंस के करीब साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सैयद अली मुर्तज़ा की हिदायत पर सेक्शन ऑफिसर बिलाल अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची की सड़कें अब भी इंतजामिया की मुंतज़िर हैं। गार्डन के इलाके से सड़कों पर पानी जमा है, जगह जगह कचरे के ढेर और ताफुन फैल रहा है। तफसीलात मजीद जान लेते हैं सौलत जाफरी से। जी सौलत, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। मैं मौजूद हूँ गार्डन के मुकाम पर जहाँ पे पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा हुआ है। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर जो है वो सड़कों से गायब दिखा दी गई है। एक तरफ पानी है एक रोड पर, तो दूसरी रोड पर जो है वो कचरा कुंडी जो है वो बना दिया गया है सड़क को। यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, ताफुन उठ रहा है, शदीद ताफुन है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये इलाका क्या इसी तरीके से रहता है या फिर क्या मसला? ये इसी तरीके से रहता है इलाका, इसको कोई देखने वाला नहीं है। रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी है, कम से कम आप इसको इलाके को कराची को ऑन करें अल्लाह के वास्ते, वरना लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। बिल्कुल, आप इस इलाके के एक रिहायशी की जो है वो दास्तान सुन रहे थे। उनका यही कहना है कि इस इलाके में ताफुन उठ रहा है। एक जगह नदी नाले का मंजर पेश कर रही है सड़क, तो दूसरी सड़क जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो आलाइशें इस कचरे के ढेर में पड़ी हुई हैं और इंतज़ामिया जो है वो ये दावे करती है कि हमने कराची को साफ़ कर दिया है। कराची इस वक्त भी जो है वो नशेबी सूरत हाल जो है वो अख्तियार किया हुआ है। इस वक्त भी कराची की सड़कों पर पानी है और लोग जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जी, कोयटा का हाल भी कुछ अलग नहीं है। कोयटा में मुतादिद सड़कें मरम्मत ना होने के बायस खस्ता हाली का शिकार हैं। कमरानी रोड भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जबकि हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के बायस हादसात में भी इजाफा होने लगा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान। जी हाँ, बिल्कुल इस समय मौजूद हूँ कोयटा के इलाके कमरानी रोड पे, जहाँ की जो सड़क है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पर जो है हादसा रोनुमा होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के रिहायशी है, उन्हें भी आमदोरफ्त में खासी परेशानी का सामना रहता है। इस वक्त यहाँ के एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ पर बहुत परेशानी है सर जी, यहाँ पर बहुत हादसे हो रहे हैं, यहाँ पर पत्थर उड़ रहे हैं, यहाँ काफ़ी अर्से सड़क का कोई काम ही नहीं हुआ है। यहाँ पर बूढ़े बच्चे तकलीफ में हैं सर जी। बहुत लोग यहाँ पर बेचारे ठेला चलाते हैं, जो चलाने ट्रैफिक का मसला है, बहुत जंप है, खड्डे वगैरह वगैरह सर जी। जी हाँ, मिस्टर का इनका कहना है कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से आए रोज़ यहाँ पे हादसा रोनुमा होते हैं। यहाँ से हैवी ट्रैफिक का भी गुजर रहे हैं, यहाँ उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है हादसात में इजाफा हो रहा है। यहाँ के रिहायशियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सड़क को फौरी तौर पर इसकी तामीर का आगाज़ किया जाए और यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक यहाँ से जाती है उस पर पाबंदी आयद की जाए। जी, कराची के इलाके नाज़माबाद पापोश नगर में वाक़ प्लॉट खाली कराने के लिए दायरा तरक्याती के अफसरान की जानिब से मकीनों को मुबैना तौर पर धमकियां दी जाने लगी हैं। मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके नाजिमाबाद पापोश नगर में वाक़या प्लॉट नंबर 5D6 को खाली कराने के लिए अफसरान की जानिब से मकीनों को मुबैना तौर पर धमकियां दी जाने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि KDA अफसरान ने चंद दिन पहले नोटिस आवेजा किया और कहा कि ये पार्क की जमीन है। जब इलाका मकीनों की जानिब से इंतजामिया से राब्ता किया गया तो कहा गया कि ये जमीन अबू बकर नामी शख्स ने 1989 में अलॉट कराई थी। हम यहाँ 65 साल से रहाइश पजीर हैं। नोटिस दीवारों पे लगा के चले गए थे। जब हम 3rd फ्लोर पे KDA
गए तो जमील बलोच साहब से मिले तो वो हमें कहते हैं कि जी ये अबू बकर बिल्डर्स की जगह है तो इसको लिहाजा खाली किया जाए, नहीं तो मैं इसको तोड़ फोड़ दूंगा ईद के बाद। कहाँ का इंसाफ है भाई, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तो हमें मेंशन कराओ ना। ये बोलते हैं जगह किसी पार्क की जगह है, कभी बोलते हैं कि ये अबू बकर की जगह है, कभी कहते हैं कि ये केडीए की जगह है। मकीनों का कहना है कि केडीए के मुतल्लिका अफसरान, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मकानात खाली कराने के लिए मुबैना तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा मकीनों ने वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। मौसम की बदलती सूरत हाल से आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद का रुख करें। सबसे पहले आपको बताएं कि बादलों का बसेरा, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद का सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। सुबह का आगाज जुड़वा शहरों में हल्की बूंदाबांदी से हुआ, जिससे मौसम मजीद दिलकश हो गया। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आफ्ताब जहां से। आफ्ताब, मौसम कैसा है और क्या इस वक्त सुबह के इस पहर क्या लोग घरों से निकले एंजॉय करने के लिए मौसम? जी बिल्कुल, शहर बेमिसाल का मौसम सुबह सवेरे ही निहायत खूबसूरत और दिलकश हो गया, क्योंकि सुबह का आगाज़ ही बारान रहमत से हुआ, जहां कुछ सेक्टर्स में और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ। तो इस्लामाबाद का जो मगरिबी हिस्सा है यानी मारगला पहाड़ियों की जानिब का जो हिस्सा है, वहाँ पे तेज़ बारिश ने इस्लामाबाद की खूबसूरती को और जो है मज़ीद चार चांद लगा दिए। अभी भी आसमान पे सुरमई बादलों ने अपने डेरे जमाए हुए हैं। मारगला के जो खूबसूरत पहाड़ है वहाँ पे काले बादलों ने जो अपना बसेरा किया हुआ है, उससे उनकी खूबसूरती जो है वो और मज़ीद उसमें भी निखार आई है। बारिश के बाद इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार के साथ इसके टेम्परेचर में भी जो है वो खासा कमी आई है। गर्मी और हब्स का शिद्दत जो है वो भी उसमें भी खासे कमी जो है वो दिखाई दे रही है। जबकि क्योंकि आज हफ्ते का रोज़ है तो ये मुमकिन ही नहीं कि बारिश भी हो और छुट्टी भी हो तो शहरी घरों से बाहर न निकले। तो क्योंकि मारगला की पहाड़ियों पर जो बादलों ने भी डेरा जमाया हुआ है और वहाँ पे तेज़ बारिश से मौसम जो खुशगवार हुआ है, तो लोगों ने ज़्यादातर जो रुख जो है वो मारगला की पहाड़ियों की जानिब किया है। ट्रेल 5 पे हाइकिंग करके और दामने कू की जानिब जो रास्ता जाता है, वहाँ पे मौसम जो है जब बारिश होती है तो वहाँ पे जो निखार आता है तो उसे लोग देखने के लिए घरों से जो है वो लाजिमन जो है वो बाहर निकलते हैं। और हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद और जुड़वा शहरों के बासी जो है या दीगर शहरों से आए हुए सयाह जो है वो कोशिश करते हैं कि हफ्ते के रोज़ घरों से बाहर निकले, सुबह का नाश्ता भी बाहर करें और इसके साथ मौसम को भी एंजॉय करते हुए जो ट्रेल दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम वाकई बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां वहीद गुजर हमारे साथ हैं। लाहौर में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम अब भी खुशगवार है। गर्मी और हब से शहरियों को आखिरकार छुटकारा भी मिल गया। सुबह सवेरे जिलानी पार्क में वॉक और एक्सरसाइज वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया। इस वक्त वहीद गुजर जिलानी पार्क में ही मौजूद हैं। वहीद, मौसम कैसा है वहाँ का? बिल्कुल, देखें गुज़श्ता अगर बात की जाए तो 3 रोज़ जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और बिलखसूस जो है वो 2 दिन जो है मुसलसल बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहा था और जिससे मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया। गर्मी का ज़ोर मुकम्मल टूट गया, हब्स में नुमाया कमी होगी और आज जो है इस वक्त सुबह जो है यहाँ पर गहरे बादल थे मगर अब जो है धूप निकल आई है। मगर महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी दोपहर के बाद और कल भी जो है हल्की बारिश का सिलसिला जो वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू होगा। मगर मौसम जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, बेहतर है, हब्स नहीं है, गर्मी उस तरह से नहीं है। मगर फिर भी गुजरते टाइम के साथ साथ हमने देखा कि हब्स में जो है वो इजाफा जो है होना शुरू हो चुका है। मगर महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौरी तैयार रहें क्योंकि आज भी दोपहर के बाद जो है बारिश का सिलसिला शुरू होगा। मगर हल्की बारिश है आज भी और कल भी, तो उससे जो है मौसम जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और उसके साथ साथ बताते चलूँ कि जिलानी पार्क में मौजूद है तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रौनकें मांद पड़ गई थी सुबह सवेरे, क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वॉक के लिए आती है, एक्सरसाइज के लिए आते हैं लोग। तो आज जो है हमने देखा कि सुबह सवेरे आप फुटेज में भी देख रहे होंगे कि शहरी एक्सरसाइज भी करते दिखाई दिए और वॉक यहाँ पर जो है गैर मामूली जो है यहाँ पर रश भी है वो जो देखने को मिला। तो इस वाले से शहरी से जो हमारी बात है उनका ये कहना था कि मौसम कदर बेहतर है। सुबह सवेरे तो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। अब जो है सूरज और बादलों की आँख मचोली का खेल जो वो शुरू हो चुका है। शहरी इस मौसम को अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा लाहौरी जो इंजॉय करते हैं। मगर महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है दोपहर के बाद अगर बारिश शुरू होती है तो हब्स और गर्मी अगर जो है उसमें मज़ीद जो है वो कमी होगी। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज जो है दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। यही दर्जा हरारत जो है गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि 20 रिकॉर्ड किया गया था। मगर महकमा मौसमियात का कहना है कि आज 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर बारिश हो जाती है तो इसमें मज़ीद कमी भी होगी। तो ये शहर की एक मजमूई सूरत हाल है, मौसम बेहतर है, खुशगवार है। यही मजमूई सूरत हाल है। इस्लामाबाद और लाहौर के मौसम में इस वक्त
काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एक तरफ सुरमई हल्की बारिश भी है, सुरमई बादलों के ढेर हैं वहाँ पे, जबकि दूसरी जानिब हल्की धूप निकली हुई है। लेकिन शहरी इस वक्त दोनों मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां, लाहौर से मैं अपडेट कर रहे थे वहीद गुजर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।